clear लिख दो chat box पे. YouTube वाली जनता please, if the audio video is clear, just write clear in a chat box. फटाफट right. फटाफट clear लिख दो if the audio video is clear. Right, if the audio video is clear, just wanted to check on YouTube live. YouTube वाली, the audio video is clear, just chat box. फटाफट. एक सेकंड. YouTube की जो जनता है, just give a confirmation. Zoom पे I think the audio video is clear to all of you guys. Yes. चलो, great. Now without wasting much of our time, let's start the session on investment banking. Right, past me we have conducted a lot of sessions on investment banking where I've told you out what investment banking is all about. Right, some of the procedure part is also covered, but today's session I wanted to cover something different, and at the end I'll also tell about how to apply, where to apply. A lot of vacancies which are going to be there, right, into an investment banking domain. But we'll start with very important things on investment banking side, which is number one, the interview preparation for investment banking, जहाँ पे I'll select one of you guys randomly for mock interview. ठीक है, पहले एक mock interview लेंगे IB का, and after that is done, we'll move towards the discussion on what all areas, what all places are available for. या पहले places बता दे या interview बाद में ले? What do you want? I am okay with anything. Do you want a KT first, then mock interview, or the mock interview? अच्छा, places पहले बता दे. हाँ बेटा, सब समझ रहे हैं. मॉक इंटरव्यू जो जूम पे बैठे हैं उन लोग को तो भाई वीडियो ऑन कर लेना चाहिए, बिकॉज अगर आपका वीडियो बंद रहेगा तो आपको रेंडमली चूज कर लेंगे हम लोग. ठीक है, और आपको बोलेंगे मॉक इंटरव्यू दो फिर. ठीक है, देख लो. यस, यस, ओके, चलो, गॉट इट, नो प्रॉब्लम. ठीक है, तो लेट अस डिस्कस इन डिटेल अबाउट इन्वेस्टमेंट बैंकिंग. थोड़ा सा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में डिस्कस कर लेते हैं. देन विल हैव मैंने वैसे तो बहुत सारे सेशंस लिए हैं ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, टू बी वेरी ऑनेस्ट, बट अभी मेरे को थोड़ा सा है ना पर्सपेक्टिव चेंज करना है आईबी के प्रति. सिंस एवरी वन ऑफ यू हैव बीन फोकसिंग ऑन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, बट द प्रॉब्लम इज दैट वी आर ओनली फोकसिंग ऑन द एरियाज विच वी नो, वी आर नॉट फोकसिंग ऑन द अदर एवेन्यूज विच आर अवेलेबल. ठीक है, बहुत सारे ऐसे एवेन्यूज अवेलेबल है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के साइड जहां पे हम जाने का कोशिश भी नहीं कर रहे हैं, टू बी वेरी ऑनेस्ट. ठीक है, तो हमें पता नहीं है इसलिए हम नहीं जा पा रहे, बट आई एम गोना बी एक्श्योरिंग दैट बाय द एंड ऑफ द सेशन यू हैव अ गुड नॉलेज अबाउट द सेम. राइट, तो मैं काम करता हूँ आज के सेशन में थोड़ा सा लिखवा लेता हूँ. तो जाओ बेटा, पेन पेपर नोटबुक उठाओ. अरे सीएमओ के सेशन में आए तो खाली हाथ नहीं आने का, पेन पेपर लेके आने का. ठीक है, सो दैट यू कैन लर्न मोर, यू कैन अर्न मोर, है ना, दैट इज गोना बी देयर. चलो, यूट्यूब की जनता जो कनेक्टेड है यार, फटाफट पेन पेपर अपना कैरी कर लीजिए, सो दैट यू कैन हैव अ गुड नॉलेज, अंडरस्टैंडिंग एंड शेयरिंग. मैं एक नोट्स भी बनाते जाऊंगा इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का. Meanwhile, I'll also try to explain it out so that you can understand in a better way. आज थोड़ा सा डीप डाइव करेंगे इन्वेस्टमेंट बैंकिंग पे, so that you know what all career opportunities are available for you guys. फिर पैरेलली मैं कुछ फर्म्स के नाम से भी बताते जाऊंगा where you can apply, और उसके बाद I'll pick up 2-3 और 1 candidate randomly for the mock interview. ठीक है, उसका mock ले लेंगे ताकि उसको एकदम ग्रिल कर दे, तो you'll get to know the vibes of how the investment banking interviews are gonna be. ठीक है, and luckily in my journey I've interacted with a lot of investment bankers, right, and a lot of investment bankers have pitched me to, again, they are ready to they're forcing me to sell the shares of this of CMO, but I was like नहीं अब नहीं बिकेंगे. ठीक है, बिकेगा नहीं. तो that is something which I did, and 2 days before also I got one of the mail from one of the investment banker to मतलब they were ready to invest in CMO, but I was like नहीं. So in my journey, I interact with a lot of investment bankers in terms of deals and all this, right? That is a good part. ठीक है, चलो, let's थोड़ा सा understand about investment banking. तो सबसे पहले फटाफट notes भी बनाते जाए, and फिर at the end I'll also parallelly explain you out, and once that is done, we'll go with the mock interview. ठीक है, first, what is investment banking? ठीक है, what is investment banking? In my journey, I interact with a lot of investment bankers in terms of these. What is investment banking? ठीक है, I hope my screen is visible. ठीक है, screen visible है, perfectly fine. लिखो. An investment bank is an institute
As an investment bank is an institute that provides financial advices and raises money, पैसा उठाएगा, raises money, है ना, for the set of clients, ठीक है, for the set of clients, ठीक है. An investment banker is an institute that provides the financial advices and raises money for the set of clients, ठीक है. ओके, नेक्स्ट. हाँ, अब एक चीज समझो. सबसे पहला सिंपल सा एग्जांपल, ये मैं बहुत बार समझाया भी हूँ, बट फिर से अगेन आई एम एक्सप्लेनिंग. इमेजिन दैट दिस इज जेपी मॉर्गन. आई होप एवरीवन नोज जेपी मॉर्गन इज अ इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, आईबी फर्म है, ठीक है. यहाँ पे एक क्लाइंट है, यहाँ पे आप हो. एक क्लाइंट है जिसके पास पैसा है, वो हैव मनी, राइट. यू वांट सम मनी, ठीक है. यू वांट सम मनी, राइट. यू गो टू द इन्वेस्टमेंट बैंकर सेइंग दैट हे इन्वेस्टमेंट बैंकर, आई वांट सम मनी, राइट. मुझे पैसा चाहिए. आई एम रेडी टू डू व्हाट? आई एम रेडी टू सेल माय शेयर्स, ठीक है. आई एम रेडी टू सेल माय शेयर्स. There is another guy who's going to be sitting on the other side. He'll say that okay, I'm ready to buy some shares. I'm ready to buy some shares, right? पैसा दोगे तो शेयर लोगे ना. You're ready to buy. You can go to the investment banker, ठीक है. Now, being a role of an investment banker, your main role is to ensure that this deals get successfully implemented. ये deal हो रही है, because your commission is going to be involved in this deal, right? ये deal पे आपका commission होगा. अगर deal हुई तो you earn. If the deal is not there, you're not going to be earning, right? तो देखो क्या है. एन इन्वेस्टमेंट बैंकिंग इज अ फाइनेंशियल बैंक, इज अ इंस्टीट्यूशन दैट प्रोवाइड्स अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स एंड रेजेस अ मनी फॉर द सेट्स ऑफ क्लाइंट्स, राइट. रेजेस अ मनी एंड प्रोवाइडेड अ फाइनेंशियल एडवाइजर्स, कि भाई पैसा कहाँ लगाऊं और पैसा रेज कहाँ से करूं. एंड इट कैन बी मल्टीपल सोर्सेज. ध्यान दो, ये मैं बहुत अलग इसमें जाने वाला हूं आज. देयर आर मल्टीपल सोर्सेज वेयर दिस इन्वेस्टमेंट बैंकर कैन हेल्प द गाइज टू इन्वेस्ट मनी. ऐसा नहीं है ना कि सिर्फ आप शेयर्स में इन्वेस्ट करोगे. You can also invest in IBOs, you can invest in bonds, you can invest in debt markets, right? ऐसा नहीं है ना कि you'll raise money from one source. Equity से raise करोगे, ऐसा तो नहीं है. Multiple sources से आप raise कर सकते हो, right? तो that is gonna be there. Okay, अब मैं थोड़ा सा डिटेल में जाऊंगा. कुछ लोगों को ऊपर से जा सकता है, but I think that's also fine till the time you're learning. If you feel like I'm going fast, just let me know. The first is the first division in investment banking. The first division in investment banking, सबसे पहला division is sales and trading. सेल्स एंड ट्रेडिंग साइड पहला डिवीजन होता है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में, सेल्स एंड डिवीजन, जिसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट, राइट. पहला डिवीजन. मैं ऑफिस की बात नहीं कर रहा हूँ, फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस, उसकी बात नहीं कर रहा हूँ. मैं डिवीजन की बात कर रहा हूँ, ठीक है. काम की बात कर रहा हूँ, राइट. अब देखो सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन में क्या होगा सबसे पहले, राइट. सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन में क्या होगा, राइट. तो लिखो इसमें सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन, सेल्स एंड ट्रेडिंग डिवीजन on revenue through trading commission. पैसा कमाएंगे कमीशन, ट्रेडिंग कमीशन, थ्रू ट्रेडिंग कमीशन एंड ट्रेडिंग प्रॉफिट. ध्यान से समझते हैं, प्रोडक्ट समझेंगे तो मजा आएगा. अब देखो यहाँ जहां जो जो प्रोडक्ट्स है ना, वहां वहां वैकेंसी मिल जाएगी आपको. व्हाट ऑल प्रोडक्ट्स आर अवेलेबल? नंबर 1, द प्रोडक्ट विच इज लाइक इक्विटी प्रोडक्ट हो गया, दैट इज स्टॉक्स. मान लो कोई कंपनी के लिए आप ट्रेड कर रहे हो इक्विटीज में, इक्विटी में प्रॉफिट आया, उस पर आपने कमीशन लिया, आपका अर्निंग हो गया. दूसरा हो गया फिक्स्ड इनकम. कुछ फिक्स्ड इनकम हो गई, जैसे कि आपके बॉन्ड्स, ठीक है. तीसरा हो गया आपका कमोडिटीज, या कमोडिटीज, राइट, कमोडिटीज. चौथा हो गया आपके कोई करेंसीज में आप ट्रेड कर रहे हो,
राइट। पांचवा हो गया आपका डेरिवेटिव, राइट। अगर आपको इसमें से कहीं पे भी मजा आता है तो यू आर वर्किंग ऑन सेल्स एंड ट्रेडिंग साइड, है ना, यू आर वर्किंग ऑन सेल्स एंड ट्रेडिंग साइड। हर एक चैप्टर ऑफ योर एसएफएम इज अ साइड ऑन अ करियर ऑप्शन व्हिच यू आर गोना बी हैविंग ऑन अ सेल्स एंड ट्रेडिंग साइड। ठीक है, अब आपको ये सर्च करना होगा कि भाई कमोडिटीज में कौन सी कंपनीज हायर करती हैं। आपको लिंक्डइन को इस तरीके से कैपिटलाइज करना पड़ेगा, मैंने सिखाया हुआ है सेशन में कैसे करना है, राइट। तो ये चीज आपको सर्च करनी पड़ेगी। अब इसमें इसमें भी अब सब डिविजन होते हैं, सेल्स एंड ट्रेडिंग में सब डिविजन होते हैं, वेयर द वर्क इज डिवाइडेड इनटू थ्री पार्ट्स। इसमें तीन प्रकार के व्यक्ति मिलेंगे आपको, थ्री टाइप्स ऑफ पीपल आर गोना बी देयर। फर्स्ट पर्सन इज कॉल्ड एज अ सेल्स पर्सन, है ना, सेल्स पीपल। सेकेंड पर्सन ऑल कॉल्ड एज ट्रेडर्स, एंड थर्ड पर्सन इज कॉल्ड एज अ सेल ट्रेडर्स। ध्यान दो, बड़ी मजेदार चीज है। सेल पर्सन इज अ पर्सन दोस हु सजेस्ट अ ट्रेड, ये ट्रेड के आइडिया देगा और ऑर्डर लेगा क्लाइंट से। क्लाइंट, आपने देखा क्लाइंट ने फोन किया कि भाई देखो सर अभी ये शेयर अभी मुझे लग रहा है एक्सिस का उठने वाला है, हाँ, ट्रेडिंग आइडिया दिया और ऑर्डर दे रहा है क्लाइंट को। तो क्या दे रहा है, सजेस्ट ट्रेडिंग आइडियाज, कि भाई देखो यहाँ पैसा डालो, ऐसा डालो, इधर होगा वो होगा, राइट। एंड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम क्लाइंट, एंड टेक ऑर्डर्स फ्रॉम क्लाइंट, ये होगा सेल्स पर्सन। ट्रेडर्स वो लोग होते हैं जो एग्जीक्यूट करेंगे ट्रेड, राइट, एग्जीक्यूट ट्रेड। सिंपल है, से फॉर एग्जांपल सेल्स पर्सन ने पूछा, अच्छा निखिल जी आपके 100 करोड़ रुपए है, उसको हम इन्वेस्ट कर दें एक्सिस बैंक में। निखिल बोला हाँ सर कर दो। कौन ऑर्डर लिया, सेल्स पर्सन। इन्वेस्ट कौन किया, ट्रेडर, राइट। और दोनों के बीच में जो इंटरमीडिएटरी रहेगा, जो इंश्योर करेगा कि भाई जो ऑर्डर आया है और जो एग्जीक्यूशन हुआ है वो सही हो, उसका काम है सेल्स ट्रेडर का, सेल्स ट्रेडर का काम है। तो एक्ट एज इंटरमीडिएटरीज, इंटरमीडिएटरीज, है ना, एक इंटरमीडिएटरी के काम करेगा। सर अगर मेरे को ट्रेडिंग में मजा आता है, ध्यान से समझिए, अगर आपको ट्रेडिंग में मजा आता है, इफ यू लव द ट्रेडिंग, देन दिस इज एरिया फॉर विच यू कैन थिंक ऑफ कैपिटल मार्केट्स, जहां पे आप इक्विटी साइड जा सकते हो, फिक्स्ड इनकम, कमोडिटीज, करेंसीज, डेरिवेटिव्स। वर्क मिलेगा इन तीनों में से कोई एक, समझ लो। पता होना चाहिए भाई, इन्फॉर्म्ड डिसीजन लेना है हमको, इन्फॉर्म्ड डिसीजन कि भाई मुझे कहाँ जाना है, कैसे जाना है। ठीक है, अब क्लियर हो गया कि भाई चलो सर मुझे है ना मजा आता है इक्विटी में, तो इक्विटी में कहाँ जाना है आपको, सेल्स पर्सन, ट्रेडर्स और इस पे। ठीक है, कुछ ट्रेड्स सिस्टम अपने आप एग्जीक्यूट कर लेता है, वो सब चीजें अलग है, बट डेफिनेटली यू शुड बी अवेयर ऑफ द सेम स्ट्रक्चर। समझो, बाद में हम डिसाइड करेंगे कहाँ जाना है। तो पहला आई थिंक डिवीजन सबको समझ में आया, सेल्स एंड ट्रेडिंग वाला। यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, आई वांट अ पार्टिसिपेशन। आप पार्टिसिपेट नहीं करोगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा, राइट। आप पार्टिसिपेट नहीं कर पाओगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। पार्टिसिपेशन चाहिए मुझे। इफ यू अंडरस्टूड इट जस्ट राइट यस इन द चैट बॉक्स, इफ यू नॉट अंडरस्टूड इट जस्ट राइट नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। यूट्यूब की जनता आप भी हाँ लिख दीजिए, हमको बड़ा मोटिवेशन फील होता है, आप ऐसा मत करिए, राइट। फटाफट फटाफट यस लिख दीजिए, फटाफट फटाफट यस लिख दीजिए। गॉट इट, सबको समझ में आ रहा है, गॉट इट। नेक्स्ट होता है सेकंड, सेकंड ये हो गया फर्स्ट। सेकंड होता है ना, सेकंड किस बारे में समझते हैं, विच इज रेट से लिखा है, हाँ। सेकंड, सेकंड है असेट मैनेजमेंट, असेट मैनेजमेंट एंड प्राइवेट बैंकिंग, असेट मैनेजमेंट एंड प्राइवेट बैंकिंग, असेट मैनेजमेंट एंड प्राइवेट बैंकिंग। ठीक है, तो सबसे पहले लिखो असेट मैनेजमेंट के बारे में, इट मैनेजेस, इट मैनेजेस, इट मैनेजेस एंड administers the asset, it manages and administers the asset of
institutions such as pension fund, endowment fund, like फाउंडेशंस, है ना, कॉर्पोरेट गवर्नमेंट, कॉर्पोरेशंस, गवर्नमेंट एंड इन्वेस्टमेंट इंडिविजुअल्स। ठीक है, नाउ इन शॉर्ट समझो, एक ऐसा डिवीजन जो पैसा मैनेज करने वाला है, असेट मैनेजमेंट डिवीजन, जो मैनेज करेगा किसी क्लाइंट के बिहाफ पे कोई फंड। बहुत बार आपने सुना होगा पीएफ फंड बनाया गया है, एक फंड बनाई है कंपनी ने, विच द कंपनी इज गोना बी मेंशनिंग ऑन बिहाफ ऑफ समवन। पैसा आया है, उसको मैनेज करना है, असेट मैनेजमेंट साइड। आई होप आपने एएमसी के बारे में पढ़ा होगा, असेट मैनेजमेंट कंपनी म्यूचुअल फंड में, राइट। तो एक फंड आया है, उसको आपको मैनेज करना है। तो ये हो गया आपका एक असेट मैनेजमेंट साइड, राइट। असेट मैनेजमेंट साइड ये आपका हो गया। ठीक, अब इसमें भी 3 डिविजन होते हैं, राइट, विच इज गोना बी देयर, विच इज अ पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, रिस्क मैनेजमेंट एंड बाय साइड रिसर्च, है ना। इसमें 3 डिवीजन होते हैं। अब इसमें मैं इतने गहराई में नहीं जाऊंगा, नहीं तो आप लोग को बोलेंगे भैया ये क्या चल रहा है, राइट। डिविजन्स, इसमें 3 मेजर डिवीजन होते हैं पोर्टफोलियो मैनेजमेंट और प्राइवेट बैंकिंग में, विच इज बाय साइड रिसर्च। देखो बाय साइड रिसर्च क्यों, एनीवन कैन गेस व्हाई बाय साइड रिसर्च? अरे भाई पैसा पड़ा हुआ है ना, पैसा पड़ा हुआ है तो खरीदोगे ना। हेलो, आई यू गेटिंग इट? 100 करोड़ का आपके पास असेट पड़ा हुआ है, 100 करोड़ कैश पड़ा हुआ है, क्या करोगे? इन्वेस्ट करोगे। इन्वेस्ट करना है मतलब बाय करना है, समझेंगे ये कॉन्सेप्ट बाय साइड, ये बाय साइड। ठीक है, तो ये बाय वाला, तो 100 करोड़ पड़ा हुआ है तो भाई क्या करेंगे, खरीदेंगे। तो एक एक डिवीजन इसमें हो गया कि बाय साइड रिसर्च। सेकंड हो गया पोर्टफोलियो, राइट, पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, इसमें एक डिवीजन हो गया पोर्टफोलियो मैनेजमेंट। एंड थर्ड हो गया इसमें रिस्क मैनेजमेंट। 3 डिवीजन हो गया आपके, राइट। पोर्टफोलियो मैनेजमेंट, काफी सारे पोर्टफोलियोज, आई डोंट नो किसी ने म्यूचुअल फंड अगर देखा होगा तो वहां पे एएमसी रहता है ना, असेट मैनेजर, एएमसी के मैनेजर्स होते हैं। कभी अगर किसी ने म्यूचुअल फंड को देखा होगा ध्यान से, देयर मस्ट बी, यू मस्ट हैव सीन लॉट ऑफ असेट मैनेजर्स, द पोर्टफोलियो मैनेजर्स, तो वो रोल होता है एक। और एक होता है रिस्क मैनेजर्स का। भाई पता होना चाहिए, अगर तुमको डोमेन्स पता है ना तो अप्लाई कर पाओगे, ढूंढ पाओगे। आई पे गेटिंग इट, है ना। तो सेकंड इज दिस। थर्ड, थर्ड थर्ड हो गया आपका, यहाँ पे आप बाई साइड कवर कर के लिए हमने, थर्ड हो गया आपका विच इज विच इज विच इज प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मतलब क्या होता है? प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग मींस इट्स अ ट्रेडिंग विद द फर्म्स ओन कैपिटल। एक ऐसा ट्रेडिंग जो आप खुद के इससे ट्रेड कर रहे हो, फर्म के पैसे से आप ट्रेड कर रहे हो, राइट। ट्रेडिंग सिक्योरिटीज विद द फर्म कैपिटल, बहुत बार इसको हम लोग प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग या प्राइवेट, है ना, पी फर्म्स बोलते हैं ना, राइट, प्राइवेट इक्विटी। क्यों? क्योंकि भाई वो अपने पैसे लगा रहा है, राइट। ट्रेडिंग विद द ओन सिक्योरिटीज, तो इन शॉर्ट लिख लो इसको कि अगर आप खुद का पैसा लगा के ट्रेड मार रहे हो, कि भाई देखो एक ऐसा कंपनी है कि जिसका बहुत पैसा है ना, टाटा, भाई बहुत पैसा है, मैं खुद का इन हाउस टीम बिठाऊंगा, पैसा कहाँ लगाना, प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग हो रहा है। ठीक है, तो दिस इज नथिंग बट व्हाट, ट्रेडिंग सिक्योरिटीज with with the firm, with the firm's own capital, खुद के पैसे से ट्रेड मार रहे हैं बैठ के, ये हो गया प्रोप्राइटरी ट्रेडिंग। ठीक है, नेक्स्ट, फोर्थ लास्ट, राइट, फोर्थ है आपका विच इज गोना बी ऑन सेल साइड रिसर्च। देखो क्या होता है फोर्थ, सेल साइड रिसर्च। अब सेल साइड रिसर्च में हम क्या चाहते हैं, देखो देखो प्लीज अंडरस्टैंड, बाय साइड सेल साइड समझ लो पहले, मैंने बताया, फिर से बता रहा हूँ। सेल साइड मतलब ये पर्सन बेचने के लिए तैयार है, ही इज रेडी टू सेल, ही इज सिटिंग ऑन अ सेल साइड, द पर्सन इज रेडी टू बाय सिटिंग ऑन अ बाय साइड। ठीक है, अब देखो जनरली क्या है,
अगर जब मेरे को सेल करना है कोई भी कंपनीज का, डेफिनेटली अगर आप शार्क टैंक भी देखते होंगे तो बेचारा चाहता है कि वो हमेशा बाय पे हाई वैल्यू पे हो, और जो खरीदने वाला होता है वो हमेशा चाहता है लो वैल्यू पे हो, राइट। तो जनरली यहाँ पे जब सेल साइड रिसर्च होता है तो हमें हमेशा देखते रहना पड़ता है बीइंग अ इन्वेस्टमेंट बैंकर कि भाई कौन बेचने के लिए तैयार है। व्हाट आई एम सेइंग, रिसर्च। देखते रहे भाई, देखते रहे कौन सी चीज सस्ते में मिल रही है। शार्क टैंक का भी जब एप्लीकेशन आता है, मुझे नहीं पता कितने लोग ने देखा होगा, लिंक्डइन पे एडवर्टीजमेंट चलती रहती है कि एनीवन इंटरेस्टेड टू कम टू शार्क टैंक। देखा है क्या? पूछते रहते हैं ना, एनीवन इंटरेस्टेड टू कम टू शार्क टैंक, बिकॉज दे डूइंग अ सेल साइड रिसर्च कि भाई कोई ऐसा व्यक्ति होगा क्या जो बेचने के लिए तैयार है। अगर बेचने के लिए तैयार है मतलब हम खरीदने के लिए तैयार है, बिकॉज हमारे पास पैसा है। ठीक है। तो सेल साइड रिसर्च में बहुत तगड़ी हायरिंग होती है, यहाँ पे बहुत हायरिंग होती है जो हमें नहीं पता होती है, बट इसलिए बता रहा हूँ। तो अब इसमें सेल साइड रिसर्च में कौन कौन से एरियाज आ जाते हैं मेनली, राइट। कंपनीज जो होती है इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, इसमें मेनली डिवाइड करती है सेल साइड रिसर्च ऑफ इंटरनल क्लाइंट्स, राइट। एक ऐसा क्लाइंट भी हो सकता है ना, मान लो जिसको खुद के शेयर्स बेचने हो। मान लो रिलायंस, रिलायंस की एक कंपनी है जो चल नहीं रही है, वो बेचना चाहती है, सेल साइड पैसा चाहिए उसको। दूसरा कोई एक्सटर्नल क्लाइंट्स, कोई एक्सटर्नल क्लाइंट्स पे आप काम कर सकते हो, सेल साइड्स, है ना। और तीसरा हो गया इक्विटी रिसर्च, यहाँ पे इक्विटी रिसर्च, सेल साइड रिसर्च। व्हाई? Because I'm going to be finding out someone where people are ready to sell, so that I can research about that company. I can tell the people out, देखो भाई, this is the stocks, these are the things which you can buy at this price. ठीक है। ये इक्विटी पे रिसर्च कर रहा हूँ कि भाई देखो ये चीज है, इक्विटी है, शेयर्स के, इस पे आप बाय करो। इक्विटी रिसर्च। जितने भी साइड बता रहा हूँ सब जगह वेकेंसीज आपको कहीं ना कहीं दिखेगी, राइट, विच इज गोना बी देयर, बट द प्रॉब्लम इज यू नीड टू वर्क हार्ड। दिक्कत क्या है? मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है। सेल साइड रिसर्च, इक्विटी रिसर्च यहाँ पे आ गया। ठीक है। यहां तक की चीजें आपको समझ में आई, मेजर चार्ट डिविजन्स। हेलो, जो यूट्यूब पे कनेक्टेड है और जूम पे कनेक्टेड है, जूम वाले लोग चेहरा छुपा छुपा के बैठ गए हो, शर्म आ रही है तुमको? इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लोग चेहरा दिखाते हैं ताकि डील क्रैक हो जाए, कोई दोस्त बन जाए, राइट। जिसको इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में जाना है वो तो बढ़िया से एकदम वीडियो ऑन करके बैठेगा फटाक से। हाँ, अब हुई बात इन्वेस्टमेंट बैंकर्स इन द हाउस, आई कैन फील द वाइब्स ऑफ गुड इन्वेस्टमेंट बैंकर्स आई एम स्पेंडिंग माई क्वालिटी टाइम विद। या इन्वेस्टमेंट बैंकर्स लोग ऐसे होते हैं, बढ़िया एकदम, चेहरे पे हल्की सी मुस्कान रहती है उनके हमेशा। यस। ठीक है। जिनको नहीं समझा, डोंट वरी, आई थिंक ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम आपको सीखेंगे, बहुत सारी चीजें हम समझाएंगे, बट आई थिंक सबको समझ गए। अरे समझा कि नहीं, हाँ या ना? कि भारी भारी जा रहा है सेशन? यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज, राइट। एंड आई होप ऑल्सो यूर लर्निंग न्यू, कुछ नया सीख रहे हो, है ना। अब नेक्स्ट, ये हो गया आपका फर्स्ट चीज। सेकेंड, इसके अलावा यहाँ पे देर आर ऑल्सो 3 डिफरेंट ऑफिसेस। 3 डिफरेंट ऑफिसेस होते हैं, ये तो बहुत सुना होगा आपने, है ना। फ्रंट ऑफिस, मिडिल ऑफिस, बैक ऑफिस, राइट। फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस। ठीक है। फ्रंट ऑफिस गाइस आर गोना बी रिस्पॉन्सिबल टू क्रैक ऑल दोस डील्स, डील्स को क्रैक करने के लिए वो रिस्पॉन्सिबल रहेगा, भाई धंधा लाना है उसको, इन शॉर्ट। एंड ही और शी इज गोना बी रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्रिंगिंग द डील्स इन अ बिजनेस, द फ्रंट ऑफिस का है। ठीक है। तो इफ यू वांट टू राइट इट डाउन, लिख दो, देयर आर क्लाइंट फेसिंग, दिस आर क्लाइंट फेसिंग रोल्स एंड टिपिकली इन्वॉल्व फॉर अ रेवेन्यू जनरेशन। दे आर इन्वॉल्व फॉर अ क्लाइंट फेसिंग रोल एंड टिपिकल इन्वॉल्व फॉर अ रेवेन्यू जनरेशन, फ्रंट ऑफिस गाइस। ठीक है। बिजनेस लाना है, रेवेन्यू जनरेट करना है, फ्रंट ऑफिस। मिडिल ऑफिस, सपोर्ट फंक्शन टू अ फ्रंट ऑफिस। मिडिल ऑफिस, अ सपोर्ट फंक्शन टू अ फ्रंट ऑफिस, मेनली इन्वॉल्व फॉर रिस्क मैनेजमेंट एंड ट्रेजरी। कहीं ना कहीं बिजनेस के रिस्क के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, ट्रेजरी के लिए इन्वॉल्व रहेंगे, कौन? मिडिल ऑफिस वाले। भाई देखो, फ्रंट ऑफिस वाले ने बोला कि चलो भाई, गजब, एक क्लाइंट मिले, टाटा जी, रतन टाटा मिले, उनको पैसा डालना है 100 करोड़ रुपए। रतन टाटा इज वेरी एक्साइटेड, लुकिंग फॉर एडटेक स्टार्टअप्स टू इन्वेस्ट, राइट। देखा, राइट, जेपी मॉर्गन ने बहुत ढूंढा, उसको कोई फर्म नहीं मिली, फिर उनको मिली सीएम ऑन्क, राइट। बड़े खुश हो गए जेपी मॉर्गन वाले। आप भी खुश हो जाइए, सीएम ऑन्क के पास आए, बोले हाँ हमारे पास एक इन्वेस्टर है। बोला कौन? बोले रतन टाटा जी इन्वेस्टर है। बोला बहुत बढ़िया, राइट। तो आई बिकम वेरी हैप्पी, आई बिकम वेरी हैप्पी, मैं बहुत खुश हो गया। तो वो बोलेंगे ठीक है यार, वी आर रेडी टू इन्वेस्ट इन द सीएम ऑन्क, बट अगेन बिफोर वी आर गोइंग टू बी इन्वेस्टिंग वी नीड टू सी द प्रोजेक्शंस एंड फाइनेंशियल्स ऑफ सीएम ऑन्क, ताकि हम देखेंगे सीएमओ का वैल्यूएशन क्या है, एक प्रोजेक्शन करेंगे, एक ड्यू डिलिजेंस करेंगे, राइट। तो जो प्रोजेक्शन बनाना पड़ेगा,
वो मिडिल ऑफिस वाला बना के फिर टाटा को दिखाएगा कि भैया देखो सीएम का वैल्यूएशन इतना इतना आ रहा है, आई थिंक यू शुड इन्वेस्ट एट दिस वैल्यूएशन। तो इन्वेस्टमेंट बैंकर इज एक्टिंग एज इंटरमीडिएटरी, राइट। बट ये जो मॉडल वगैरह जो बनाना, कुछ पीपीटी वीपीटी बनाना, ये सब बनाने का मदद करेगा कौन? मिडिल ऑफिस वाला। किसको? फ्रंट ऑफिस वाले को, ठीक है। एंड द थर्ड रूल इज अ बैक ऑफिस, ठीक है, बैक ऑफिस। अब बैक ऑफिस में क्या क्या रहेगा? इट इज गोना बी मोर और लेस रिलेटेड टू अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग। कोई अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग होगा, हर एक कंपनी का एक बुक कीपिंग होता है। कोई ट्रेड लिया, उस ट्रेड को एग्जीक्यूट किया भैया, तो उसको बुक्स में रिकॉर्ड करना पड़ेगा ना, बिकॉज एट द एंड ऑफ द डे यू नीड टू गिव अ रिपोर्ट टू द इन्वेस्टर्स। तो अकाउंटिंग एंड बुक कीपिंग रहेगा। उसके अलावा बहुत सारे रोल रहेंगे विच इज कॉल्ड एज प्रोडक्ट कंट्रोल रोल, पीसी रोल के नाम से जाना जाता है, बहुत हायरिंग होता है। पीसी रोल में क्या होगा कि जो ट्रेड लिया है उसको चेक करेगा कि भाई बरोबर से एग्जीक्यूट हो रहा है कि नहीं, पीसी रोल, ठीक है। इसके अलावा अदर सपोर्ट फंक्शंस एंड रोल्स टू मिडिल ऑफिस। ये तीन मेजर रूल्स आपको मिलेंगे बैक ऑफिस में। इंडिया में बहुत सारी कंपनीज का बैक ऑफिस है, फ्रंट ऑफिस तो बहुत कम है। बट इफ यू टॉक अबाउट द लार्जर इन्वेस्टमेंट बैंकिंग फर्म, उसकी बात कर रहा हूँ। इफ यू टॉक अबाउट द बल्ज ब्रैकेट फर्म और अ स्मॉल फर्म, राइट, तो उसके आपके फ्रंट ऑफिस मिल जाएंगे आपको इंडिया में। सर, आर चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हायर्ड इन दिस डोमेन, फ्रंट ऑफिस? वेरी रेयर। A person with a very good communication skill, a person who is very good at financial modeling, or who is able to project the numbers, who love the numbers, are going to be hired. अब कैसे पता पड़ेगा कि भाई वो फ्रंट ऑफिस में जाएगा कि नहीं? अभी आप एक मॉक इंटरव्यू लेंगे थोड़ी देर में। निखिल जी कह रहे हैं मैं तो दे दूंगा मॉक इंटरव्यू सर को, ठीक है, देखते हैं, राइट। तो हो गया आपका फ्रंट ऑफिस, बैक ऑफिस, मिडिल ऑफिस। सर क्या कैंपस में आईबी फॉर्म्स आएगी? आंसर इज नो, वेरी रेयर। लास्ट टाइम आई थी वेल्स फार्गो, वेल्स फार्गो आई थी, ठीक है, इस बार पता नहीं, है ना। आपको आईबी फॉर्म सर्च करना है तो अगेन यू नीड टू अप्लाई थ्रू लिंक्डइन रेफरेंसेस और थ्रू गुड कनेक्शंस। आईबी में एक चीज बहुत काम करती है, विच इज द आईबी में वन थिंग विच इज गोना बी हेल्पिंग आउट इज गुड रेफरेंसेस एंड कनेक्शंस। आईबी में बहुत काम करती है, बहुत ज्यादा काम करती है, राइट, इफ यू वांट टू गेट देयर, है ना। तो ये एक बेसिक ओवरव्यू हो गया इन्वेस्टमेंट बैंकिंग के बारे में, क्या क्या डिविजन है, क्या क्या रोल्स है, क्या क्या फंक्शंस है, राइट, और कैसे आपको अप्लाई करना, उस पर अब बहुत सारे सेशन लिए हैं, राइट। और हाँ, हाउ टू अप्लाई रेज्यूमे, अच्छा, ठीक है। कुछ लोग बेचारे बहुत टेंशन में कि सर कैसे इंटरव्यू का प्रिपरेशन करें, कैसे हम लोग आगे बढ़े। डोंट वरी, राइट, हमारा नेक्स्ट इंटरव्यू ट्रेनिंग वर्कशॉप आ रहा है, राइट, विच इज गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 27th, राइट। हर वो चीज आपको सिखाई जाएगी, डोमेन क्लैरिटी, वे टू अप्लाई, हाउ टू अप्लाई, विच कंपनी टू गो, विच कंपनी नॉट टू गो, राइट। 27th जनवरी से बैच आ रहा है, राइट, विच इज गोना बी अगेन अ रिगरस ट्रेनिंग फॉर 10 odd days into the domain where you can go into, राइट। आप वेबसाइट पे जाओगे cmonk.com पे, टॉप पे आपको मिल जाएगा, राइट, गेटिंग इंटरव्यू रेडी वर्कशॉप। वी हैव कंप्लीटेड 34 बैचेस, 35th और 36th बैच है, ठीक है, 35th और 36th बैच है। इंडिपेंडेंट फीडबैक ले लेना, लिंक्डइन पे सिर्फ cmonk लिख देना, आपको मिल जाएंगे लोग, ठीक है। कंपनी का नाम लिख देना, cmonk लिख देना, मिल जाएंगे लोग। मेरा नाम लिख देना, कंपनी का नाम लिख देना, मिल जाएंगे लोग, ठीक है। इंडिपेंडेंट फीडबैक। If you genuinely want to prepare, want to get into good companies, you can join this training workshop. We will help you out in terms of all the interview preparation. ठीक है, तो ये बैच का बस डिटेल बताना था, which is gonna be starting from 27th, राइट। लिंक मैं चैट बॉक्स पे डाल देता हूँ, those who want to register can register, और जिसको अपने फ्रेंड को भी रेफर करना है वो कर सकता है। तो ये हो गया आपका बेसिक्स ऑफ आईबी। नाउ मूविंग टू द एडवांस लेवल। अब एडवांस लेवल पे बात करते हैं कि सर थोड़ा सा मॉक इंटरव्यू भी ले लो एक जन का, बिल्कुल हाँ, राइट। तो एक जन को मैं सिलेक्ट करता हूँ रेंडमली, राइट, फॉर द मॉक इंटरव्यू, ठीक है, और फिर उनका मॉक इंटरव्यू अपन ले लेंगे। निखिल आप रेडी हो क्या मॉक इंटरव्यू के लिए? यस सर। चलो बढ़िया, आई लाइक द एटीट्यूड, ठीक है। अभी एक और जन को चूज करेंगे रेंडमली, आप छुप के बैठे हो तो आपको पकड़ लेंगे, ठीक है, यस। तो निखिल अगर हो सके तो सीवी भेजो फट से मेरे मेल आईडी पे, राइट, मेरे को सीवी हाँ श्योर सर, मेल कर दो प्लीज, श्योर श्योर श्योर। है ना। मेल आईडी मैंने आपको चैट पे दे दी है मेरी, ठीक है, यस। बाकी लोग प्लीज पैरेलली यू कैन नोट डाउन द क्वेश्चंस, राइट, यू कैन सी दस थिंग्स आउट कि निखिल कैसे आंसर कर रहे हैं। मैं बेचारे को थोड़ा सा ग्रिल करूंगा, राइट, सो दैट ही इज गोना बी प्रिपेयर्ड। पैरेलली आप देखिए आपको कितने आंसर्स आ रहे हैं, राइट, और नहीं आ रहे तो डेफिनेटली इट रिक्वायर्स अ प्रिपरेशन, ठीक है, आपको प्रिपरेशन करनी होगी, विच इज गोना बी देयर, बिकॉज आईबी में अगर आप तो कोशिश करते हो कि फ्रंट ऑफिस जाओ, इफ यू वांट अ गुड पैकेज डेफिनेटली यू आर एक्सपेक्टेड टू वर्क हार्ड, बिकॉज कोई फ्री के पैसा तो नहीं देगा। Because in IB, right, the variable salary can be sometimes also go to 200, 300%.
मतलब आपका सैलरी अगर 9 लाख रुपए है फिक्स्ड, तो वेरिएबल सैलरी कैन बी 18 लाख. It purely depending on deal, purely depending on how you work, right? तो it's very important. भेजा क्या निखिल भाई? ये सब भेज दिया. तुम तो यार बड़े तेज निकले यार. हम्म. चलो बढ़िया है, ग्रेट. GIR में ही सीखा है. अच्छा बेटा, चलो बढ़िया है. ओके. तो निखिल आपको मैं थोड़ा सा आईबी साइड ज्यादा क्वेश्चंस पूछूंगा, एचआर वेचआर के क्वेश्चंस आपको नहीं पूछूंगा. ठीक है. ठीक है, बिकॉज अभी एचआर वेचआर का तो नहीं है, अभी सेशन आईबी का चल रहा है, तो आपको ज्यादा ग्रिल करेंगे. अगर आप थोड़ा सा फील करोगे सर ज्यादा ग्रिल हो गया तो बोल देना सर रुक जाओ प्लीज. नहीं नहीं, ठीक है, कोई बात नहीं. ग्रिल कर चलेगा. दूं पूरा. हाँ हाँ, चलेगा. डन. है ना. तुम्हारे दोस्त लोग भी देखेंगे बाद में तो बोलेंगे कि भाई तू ग्रिल होके आया है. ठीक है, बट नेवरदलेस आई थिंक दे विल आल्सो एंजॉय इट, आई विल आल्सो एंजॉय इट. ठीक है, चलो ग्रेट. So imagine that you're applying in one of the investment banking fund for a company which is let's say Kotak, है ना. Kotak mutual fund में आप apply कर रहे हो, right? I am an interviewer who is interviewing you for the IB role. ठीक है, I'll be asking you and throwing you back to back questions, and based on that you need to answer the same. Okay. ठीक है, done. So great, Nikhil. Really happy to see you. It would be great if you could introduce yourself. So hi Shivam, myself Nikhil Padia. I am from Ranchi, Jharkhand, and I have done my schooling from Ranchi only. I am undergoing my articleship in ENY Delhi, and during my 3 years of articleship, I have worked on multiple clients across different sectors. I also got a chance to work on critical areas of audit such as revenue, inventory, FA. I also got a chance to independently execute a statutory audit of a particular client. Being a Big Four article, I am used to handling pressure and meeting deadlines. I love numbers. I love analyzing numbers, analyzing industries, and my hobbies include badminton and watching movies. Thank you. Got it, Nikhil. So why you are interested in investment banking? Why you want to join IB? So I love challenges, and we all know IB is a challenging career. It is not something which is you can learn in a period of like 6 months or 7 months, and you can just do the same thing again and again. It is it is very fast changing career, and you have to upgrade yourself constantly. You have to analyze numbers, you have to project financials, you have to understand the industry, and this matches with my interest areas. Got it. So Nikhil, can you please also let me know that since you have worked, have good knowledge about this area, any recent deal which you are aware of? So I have read about the merger of PVR and PVR and Inox mergers, Okay. which is the biggest merger in the multiplex segment. Okay. Also, I have read about the merger by Microsoft of the AB Activity Blizzard, which prepared the Candy Crush game and the Call of Duty game. I've also read about Google acquiring a cloud security company. I'm not sure about the name. And then the HDFC Bank to merge with the parent HDFC. Okay. Now let's talk about the merger of PVR and Inox, right? Any details we can talk about, right? What was the price? So I guess I guess the deal is not finalized yet, and I'm not sure about the valuations. Okay. How do you calculate the valuations of a company? So okay, if we have to calculate the valuation, there are multiple methods which we can use to calculate the valuation. The DCF valuations, the trading comparables, the transaction comparables. These are the methods which we can use to value a company. Okay, got it. Since you mentioned about a comparable company, how do you select a comparable company? So comparable company depends on the industry which we are looking at. We see the players who are in the industry with similar market share, or the top competitors of the company which we are valuing. Okay. Or the like we see who are the direct competitors of the company which we are. So you'll only see the competitors. That is what you're trying to say. Primary focus will be on the competitors. At what value the competitors are currently at. Okay. Yeah. Okay. Now imagine that the company does not have a competitor. Okay. So how do you value?
Okay, so if it is if it is into monopoly, and then I guess then we will see any similar transactions happened in the past to No value. similar transactions happened in past. Then we'll use a DCF model to project the valuation of the company. Any other method which you can think of? Okay. So currently I'm not able to think of any other. Okay. Okay. So how does DCF model works? Explain me about DCF. Yeah. So DCF, as we all know, stands for discounted cash flow methods. In DCF, what we do is we value the main component of this is projecting the revenue. Now there are various methods from which we can project the revenue. It can be the growth rate which the company has maintained for the last 5 or 7 odd years. It can also be the growth rate which the company has maintained in the last year. But if we are taking the growth rate of the last year, then we have to adjust the the irregular factors. For example, if the company has been able to generate 15% of return in last 5 years, but in the immediate last year, company was able to generate 20%. So we'll have to analyze for that 20%, is there any irregular factor or one-time factor? So to normalize the earnings so that we can project and take a multiple for projecting the revenue for the future. And after projecting the revenue, we also project the expenses, which will be based on as a percentage of revenue. It can also be a basis on the growth rate. For example, if you are projecting employee cost, then we can see the past trends of increase in employee cost. We can also see any long-term contracts which company have. And after projecting the revenue and expenses, we come at the EBITDA. And then after adjusting all the elements, we derive the PAT to arrive at a valuation. So how do you discount it? If we have to discount it, we discount at the cost of capital of the company, which will be a combination of cost to equity and cost of debt. Okay, got it. Now, given a one statement to read and ensure and understand the financials of a company, which statement you will choose? Sorry? Given a one statement to choose of financial statements, which statement you will choose to check the financial health of a company? So you're talking about the P&L and the balance sheet to choose from? You need to tell me. Okay. So if I have to choose a particular statement, I'll go with the P&L to the profit and loss statement to get the revenues and the profit margins which the company is earning. So the P&L will give you a detailed analysis. No, P&L will give you one side of the picture, like what are the cash flows the company will be able to generate, or we can also see the cash flow statement for that, say to You only need to choose one statement. You cannot choose two statements. Okay, so I guess I'll be then choosing the profit and loss statement to arrive at the profits the company will be able to generate. Okay, got it. Now imagine that a company is suffering from a loss, right? Since you mentioned that you will project the EBITDA, you'll check the PAT, right? The company is suffering from a loss. How do you value that company using DCF? So now if we are seeing a lot of startups getting very high valuations. So it depends on the projected future earnings which they can earn, a projected future wealth that they can create. So how many years will project the earnings? Tell me. How many? For how many years will project the earnings? So it totally depends on for how long the company will be able to generate growth. Company will be able to generate growth. Company will be not stagnant. For example, if we take 10 years, then we assume that for this 10-year high growth phase will be continued for the company. So it depends on for how long company can continue its high growth phase. And once that high growth phase is over, we simply take the for the stagnant phase, we take the terminal value. So if I am valuing a company which is currently not generating profit, then I will take a bit longer here, because definitely there to understand whether it will be able to generate the profit in future.
Now imagine And that you're projected for 5 years and company is not able to generate a profit 5 years. so so there are, then I can also increase my forecast period. If I am seeing that for the 5 years also company is not able to generate profit, then I can increase my forecast period. And then if I get after the forecast period, But when the you will stick to DCF only. That is what you're trying to say. You'll not change the valuation method. no, we can also change the valuation methods. Like, since the trading comps and the transaction comps are not available, so I guess DCF would be the appropriate method. Or we can also value on the basis of with the various of tech companies gets value on the amount of investment they have done. Why don't you value on a multiple method? Why are you not using that? Yeah, we can also do that. I think that's a better option instead of doing that Yeah. for 15 years. Yeah. Okay, no problem. What is the difference between enterprise value and equity value? So enterprise value is the value which it combines all the equity as well as the debt value. But when we talk about the equity value, it's only only for the equity shareholders. How do you derive enterprise value? So if we have to derive the enterprise value, again, we have to use the DCF method and discount all the cash flows and take the cost of capital. That is the cost of equity as well as the cost of debt to arrive at enterprise value. What do you say? How do you calculate enterprise value? So we have to calculate the cash flows and the cost of capital, and then discount it to arrive at the earning, to arrive at the valuation. Are you sure? Not 100% sure. Not a problem. Now tell me one important thing. Which is a costlier fund, a cost of debt or cost of equity? Okay, so it depends. It depends. It totally depends. Like a lot of startup don't prefer to take debts because it has a commitment. So it depends on at what rate we are taking the debt and what are the expectation of our equity shareholders. If What we do you are, think? Who will expect more, equity guys or debt one? so again, if debt has a fixed commitment, that if it is a 10%, that they have to give the 10%. But equity guys usually it depends again on the investment horizon. But if a equity guy is investing for long term, then initially it will not demand any fixed payments. No, so But are you ready to invest in a company where you're going to be getting a less return, less than 10% in equity? Yeah, if I am investing for long term, and if my horizon is, you're ready to take a lower return as compared to the debt one. As I said, in debt I will be getting a stagnant return like 10% per annum. But if I am investing why are you investing in equity then? Why don't you become a debt holder? But if I'm investing in equity, I might get supernatural returns also in the future. For example, I'm talking or taking all the return which is less than a debt, considering all the factors. Where you'll invest? Again, if I'm investing as an equity person, then I become the investor of the company, and I get some of the decision makings also. Like whenever what I'll do of decision making, at the end of the day, you have money, you want return. Yeah, that is. How many shares you have given a voting right? You get a mail, hell lot of mails. Even I doubt I have not given a vote to any of the shares. People don't give a damn about it. People give a damn about the money which they are going to be looking for. Right? So Yeah, you are saying that equity holders are ready to take a lower return as compared to the debt. For the initial years, if I investment horizon is for long period, then tell me the long term horizon. What is an equity investor looking for, and which is a costlier fund, a debt or equity? Answer in simple word. Which is a costlier source of fund, cost of equity or cost of debt? I'm not sure of that. Sorry. You're not aware of which is costlier source of fund, equity or debt? I don't think I can answer that in one word. I have to see a lot of things before answering. Like, why do you need to see a lot of things?
according to me, because debt has a, as I said, debt has a commitment and equity don't have a commitment. But if we see for Which like, person have a higher risk? Equity guys or debt holders have higher risk? obviously equity guys. And of course, the cost of equity is going to be higher. Yeah, yeah, If definitely. you're getting a higher risk, definitely the cost is going to be higher, right, for the company, right? You'll expect a higher return. Yes, yes. Agree? Agreed, agreed. Now, supposingly the company want to borrow money, which source of fund they should use? Cost of equity or debt? So, okay, if since we concluded that cost of equity debt is lower, then we should go for debt. Acha. The company, every company should raise the No, money again, from as I said, now if the company is cannot afford if the company is not debt. having enough liquidity, then like many of the startup don't prefer to have debts because they don't have the liquidity to pay the commitments. So it depends on liquidity, and if you can afford the liquidity and you can simply honor the commitments, then definitely you can go for debt. But if you want, So, are you as a rational investor happy to invest in a company which is having a debt? yeah, if the financial health, if the company is able to generate good cash flows and if we are able to honor its commitment, then I don't think I will be having any problem in investing a company with a debt, with some Okay. debt. But a rational investor generally look for a company which is debt free. Don't you think so? Yeah, that is true because debt comes with a risk. Because if the company is not able to honor its commitment, it might go into liquidation. But as I said, if the financial health of the company is well, it is earning constant cash flows, then raising debt is also an option. So when should company raise the equity? Tell me, chalo. Okay, so if the When should company, company should issue an equity? so okay, if the company is not generating sufficient cash flows, and if the company would, the company cannot is not the primary factor should be that the company is not able to generate sufficient cash flows, and it cannot honor its commitment. It don't want to increase its risk to go into liquidation by taking huge debt. Then I guess a company should raise equity. Okay, no problem. Again, there are a lot of answers to be improved on. We'll discuss at the end. Okay. Now, let me know one thing. Supposingly, there's a company, right, who is into pure a business of tower, right? Or rather, I would say instead of tower, the company is into the business of uh, this. The company like chalo, इसमें ले लो, which is into the mobile sector, which provided telecom services, right? How do you project the revenue for the companies into telecom services? So if I have to project the revenue, I'll first identify the sources of revenue. For the telecom sector, the primary source would be telecom. For example, the primary source would be the calls as well as the data. So we'll try to bifurcate the earnings from the data services and from the call services. And there are so nowadays telecom companies provide a lot of combo offers like the data and calls together. So we'll also try to analyze the source of earning from each source of earnings, like the combos, the datas, the calls, and then we'll try to understand the past trends from with which the revenue was earning, and according to which we'll project future revenues. Okay, no problem. Can a company have a positive EBITDA for the last 10 years, can go bankrupt? Yeah, Hmm? yeah, I'm yeah, yeah. So I think even if a company is having positive EBITDA, it can go into bankruptcy. How? Uh, so if the debt, since the EBITDA is positive, so if the debt, if the company has taken too much debt, and the company is not able to honor its debt commitments, the interest payments, Okay. What else? then I guess the I got company it, will. got it. Interest payment. What else? Okay. So one thing is interest payment. Second thing is
So like if an unfortunate event happens, like the company got any have to pay any penalty, or government. Okay, got it. Next. If the invest So if the investors start drawing their money, and the company is having capital crunch, then also I guess इन्वेस्टर पैसा उठाएंगे तो बैंकरप्ट कर देंगे कंपनी को, ऐसा? मतलब अगर कैपिटल क्रंच होगा तो गधा हो भाई तुम। ठीक है, नॉट अ प्रॉब्लम। ठीक है, और इफ अ कैश इज नॉट रिकॉर्डेड, है ना, इफ कैश कलेक्टेड नॉट रिकॉर्डेड एज रेवेन्यू, व्हाट विल हैपन? cash collected not recorded as revenue. Cash collected not recorded as revenue. Well, sorry, I'm unable to understand the question. If cash collected and not recorded as revenue, what will happen? Then there is a control breach, I guess, because matlab the impact on the financials, if I talk about I'll ask the question in a different way. If the cash is collected okay, by the company as advance, where it is going to be shown? So okay, so like the entry will be advance from debtor, but if I take in advance against supplies, right? To supply in future, I've taken the advance. Taken the advance. Yeah. So it will be shown in the liability section that if I have current liabilities, advance from customers. Back account to advance from customers. I think तुम्हारा इंटरनेट चला गया शायद, वो भी बोल रहा है रुक जाओ। रिचार्ज खत्म होंगे निखिल। जियो 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 गया ये तो, इंटरव्यू छोड़ के चला गया भाई। आएगा भाई साहब, क्या करे अभी निखिल? निखिल कहाँ चला गया यार ये? ठीक है चलो, मीनवाइल आई होप बाकी लोग को तो, कितने लोग को डर लग रहा था भाई द वे? हाउ मेनी फील फीलिंग हॉरिफाइड और वरीड? क्या क्या पूछ रहे हैं भैया? दिमाग का दही कर दिया सर ने। यस और नो इन द चैट बॉक्स प्लीज। नहीं, यस और नो, है ना? वेल प्रिटी इजी। कोई कह रहा है मुझे डर लग रहा था। सच बोलो, सच सच बोलो। हाँ हाँ। What's scared? Was easy, right? The most of the questions were easy, but the problem with which happens during the time of interview is that people do not practice it, right? थोड़ा सा practice करना होगा आपको, right? You need to genuinely prepare. You need to practice it out. You need to ensure that wherever you're going to be applying, right, you should be going in a right direction every time. ठीक है? Practice is very very important thing, right? तो वही चीज आपको इंश्योर करना है कि आप ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करें, अच्छे से अच्छी कंपनीज में अप्लाई करें, राइट, विच इज गोना बी देयर। ठीक है, वो डेफर्ड रेवेन्यू करके दिखाया जाएगा भाई, डेफर्ड रेवेन्यू करके दिखाया जाएगा। ठीक है, लेट्स डिस्कस द क्वेश्चंस वन बाय वन। आगे के निखिल, अरे कहाँ चला गया था तू? रिचार्ज खत्म हो गया था क्या? अरे सर ये अरे हाँ, सर वाईफाई रहता है। क्या होता है? हेलो। हाँ जी। अरे सर यहाँ वाईफाई है नहीं, फोन से चलाना पड़ता है, बड़ा दिक्कत है भाई ऐसे ऐसे हेलो। इंटरव्यू के दिन मत करना तू, कत्ल कर देगा इंटरव्यूअर। नहीं नहीं सर हाँ, हाँ ऐसे हाँ हाँ, ऐसे करेगा क्या तू? वो ना यहाँ पे दिक्कत है, थोड़ा इंटरनेट का इशू है। अच्छा, ठीक है, नो प्रॉब्लम। ठीक है चलो, आई थिंक निखिल यू आंसर्ड प्रीटी वेल, बट फ्यू ऑफ द क्वेश्चंस इट वाज क्लियरली विजिबल दैट यू आर फेकिंग, ये आपको कंसेप्चुअल क्लैरिटी नहीं है टेक्निकल्स का, राइट? वे ऑफ डिलीवरी इज गुड बट कॉन्फिडेंस इज गुड, बट आपका है ना कॉन्फिडेंस आ गया है अभी बोलने पे, बट द वन थिंग विच यू आर मिसिंग इज द टेक्निकल क्लैरिटी। प्लीज अंडरस्टैंड, राइट? आपका टेक्निकल क्लैरिटी थोड़ा सा आपका निखिल पेंडिंग है। यस आई रिक्वेस्ट यू टू प्लीज 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 प्रिपेयर इट आउट। ठीक है, मैंने आईबी के 101 क्वेश्चन बैंक रिलीज किया, उसको पढ़ो भैया, अच्छे से पढ़ो, रीड इट आउट प्रॉपरली सो दैट यू कैन
क्लियर द गुड इंटरव्यू Yes, प्रिपरेशन। पता है कि नहीं, मैंने आईबी के क्वेश्चन बुकलेट रिलीज sir. की है। अदर्स हेलो इन द चैट बॉक्स, यस और नो इन द चैट बॉक्स। नहीं नहीं पता है सर। अरे एक्चुअली थोड़ा क्लाइंट पे। ठीक है, ज्यादा सच मत बोलो, ऑफिस वाले भी देख रहे तेरे वीडियो। ठीक है। अच्छा नहीं पता तो इफ यू डोंट नो राइट, सी monk have been working into this space for almost 2.5 years, right? We have helped and placed companies and candidates out into multiple companies. We're trying to ensure that you get closer to your dream jobs, and that is why we are working into multiple things out, right? जिसको बुकलेट नहीं मिला है, right, go to CMonk 8 टेलीग्राम ग्रुप CMonk 8, सर्च करो IB क्वेश्चन बुकलेट या 101 क्वेश्चंस एंड इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्वेश्चन आप सर्च कीजिए, यू विल बी एबल टू गेट इट आउट, टेक अ प्रिंट आउट ऑफ द सेम, रीड इट आउट प्रॉपरली, राइट? बहुत डिटेल में कवर किया है आईबी के रिलेटेड। इसके अलावा राइट फ्यू इंपॉर्टेंट थिंग्स विच आर गोना बी देयर रिलेटेड टू द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, जिसको जेन्युइनली जाना है एंड दोज हु जेन्युइनली वांट टू लर्न, राइट? तो वी हैव आवर आईबी इन्वेस्टमेंट बैंकिंग अगेन मास्टर क्लास विच इज नथिंग बट अ फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लास, राइट? जो अगेन यू कैन जस्ट ज्वाइन इट आउट, है ना, विच इज अगेन गोना बी स्टार्टिंग फ्रॉम 27 से हमारी बहुत सारी बैचेस स्टार्ट हो रही हैं, राइट? एक फाइनेंशियल मॉडलिंग की बैच स्टार्ट हो रही है विच इज गोना बी देयर, इफ यू आर इंटरेस्टेड यू कैन बी अ पार्ट ऑफ द फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लास। ठीक है, यू कैन सी दिस आउट कि फाइनेंशियल मॉडलिंग हम कैसे पढ़ाते हैं, 2 वीडियोस डले हुए हैं डेमो के, राइट? यू विल बी एबल टू गेट इट आउट, बट इसमें एक ही चीज़ है कि आपको मेहनत करना पड़ेगा। कोई कहता है कि मॉडलिंग कर लिया और मेरे को सब आ जाएगा, तो नहीं होगा। यू नीड टू पुट योर hands out, you need to ensure that you're investing a time to prepare a model, and also you need to prepare for IB साथ साथ में, तो वो भी हम करेंगे। फाइनेंशियल मॉडलिंग का क्लास भी चालू हो रहा है विच इज गोना बी फ्रॉम अगेन फ्रॉम 27th, टाइम इज आफ्टरनून टाइमिंग, 2:30 to 4:30 का टाइमिंग है आफ्टरनून का, 27th को। ठीक है, और GR का टाइमिंग है मॉर्निंग इवनिंग। ठीक है, अगर जिसको इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड टू एंड सीखना है, राइट, अंडरस्टैंडिंग ऑफ डोमेन क्लैरिटी, वे टू गो वे नॉट टू गो, हाउ टू अप्लाई, वे टू अप्लाई, सपोर्ट इन कैंपस प्लेसमेंट्स, इंटरव्यू प्रिपरेशंस, एवरीथिंग इज गोना बी कवर्ड अगेन इन GIR। मॉर्निंग 7 है, इवनिंग 7 है। इट्स इंपॉर्टेंट टू प्रिपेयर एंड देन गिव अ इंटरव्यूज इंस्टेड ऑफ गिविंग अ रॉन्ग आंसर्स, इंस्टेड ऑफ गेटिंग रिजेक्टेड। ठीक है, तो थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आपका बहुत बढ़िया बूस्ट हो जाएगा, आपको हर एक मेंटर्स मिलेंगे, वन ऑन वन देंगे, गाइडेंस होगा, रेज्यूम रिव्यू होगा, मॉक इंटरव्यूज होंगे, एट हर वो चीज विच इज नीडेड फॉर इंटरव्यू प्रेप इज गोना बी कवर्ड इन GIR, राइट? अगर आपको स्पेसिफिक IB टारगेट करना है तो आप दोनों पैकेज ले लीजिए, है ना, IB प्लस दिस, है ना, यू कैन टेक द पैकेज ऑफ GIR प्लस द इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का ये हमारा फाइनेंशियल मॉडलिंग क्लास, राइट? तो यहाँ पे आप जाओगे, कॉम्बो आपको मिल जाएंगे पूरे। ठीक है, अगर आपको फाइनेंस साइड में जाना है तो ये कोर्स ऑन पाइथन, ठीक है, पाइथन पे आपको मिलेगा। इसके अलावा GIR में अभी हम लोग काफी सारे स्टूडेंट्स को वी आर गिविंग सम ऑफ द स्टार्ट ऑडिट मास्टर क्लास एंड अदर मास्टर क्लास एट वेरी नॉमिनल कॉस्ट। तो काफी सारा बेनिफिट है इफ यू आर एसोसिएटिंग विद अस, वी आर गोना बी हेल्पिंग यू आउट इन टर्म्स ऑफ इंटरव्यू प्रिपरेशन एंड हेल्पिंग यू टू गेट क्लोजर टू योर ड्रीम कंपनीज। ठीक है, नाउ विदाउट वेस्टिंग मच ऑफ अ टाइम लेट्स डिस्कस फ्यू ऑफ द आंसर्स व्हिच आर गोना बी देयर, राइट? ओके okay, mostly all SFMs are not covered, only DCF part, FCFF। हाँ तो भाई 1 घंटे में तो इतना ही कवर करेंगे अभी। ठीक है, यस, चलो लेट्स डिस्कस द आंसर्स, जो जो डाउट्स है आपके आंसर्स थोड़े बहुत डिस्कस कर लेते हैं। जो जो क्वेश्चंस आपको लगे कि सर इसका आंसर बता दो, एक बार हम डिस्कस कर लेंगे, यू कैन पुट इट ओवर अ चैट बॉक्स सो दैट यू कैन, है ना। लास्ट क्वेश्चन वाज रिगार्डिंग अ डेफर्ड रेवेन्यू आप दिखाओगे उसको। ठीक है, नेक्स्ट और क्वेश्चन पूछिए जो डाउट्स है चैट बॉक्स में। ओके हाँ, अगर आपने मॉडलिंग खरीद लिया और GIR लेना है तो आप एक बार टीम से बात कर लो, आपको कूपन कोड दे देंगे। ठीक है, गॉट इट। सर एक वो जो क्वेश्चन आप पूछे थे ना, बीटा पॉजिटिव है तो उसमें बैंकरप्सी, उसका और क्या आंसर होगा इंटरेस्ट के उसके बहुत अलावा? सारी चीजें हो सकती है। सबसे पहला कि अगर कंपनी ने कोई हाई इंटरेस्ट एक्सपेंडिचर इनकर किया है, वो बहुत सारा कैपिटल एक्सपेंडिचर में किया है तो, राइट, डेट जल्दी मैच्योर हो गया, 1 डे डेट पेमेंट आ गया तो, राइट, और सिग्निफिकेंट वन टाइम चेंजेस। ठीक है, डेट रिपेमेंट वन टाइम रिपेमेंट होता है तो भी आ जाएगा, और कोई कैपिटल एक्सपेंडिचर किया है तो वो आ जाएगा, बिकॉज कैपिटल एक्सपेंडिचर वहां नहीं दिखेगा ना आपका कहीं पे। ठीक है, तो डिप्रिसिएशन बाद में आ रहा है ना उसके। ठीक है, डेप्रिसिएशन बाद में आ रहा है, correct। यस। अच्छा, अगर कंपनी सफर कर रही है लॉसेस तो यू कैन यूज मल्टीपल मेथड। ये निकल तुमने गलत आंसर दिया था, मल्टीपल मेथड को आप यूज करो ताकि हाँ सर, वो समय दिमाग में ही नहीं आया। तुम थोड़ा सा, है ना, नोट्स को गो थ्रू करो भाई फिर से। ठीक है, तो मल्टीपल मेथड यू कैन यूज इट आउट, है ना। नेक्स्ट इज कैन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल भी आंसर टू, मतलब नहीं समझा कौन से क्वेश्चन को बोल रहे हो। ओनली SFM रिवीजन इज इनफ फॉर टेक्निकल, नहीं, SFM के साथ साथ थोड़ा बहुत आपको मॉडलिंग और प्रोजेक्शन आना चाहिए। सर इन विच डोमेन फाइनेंशियल मॉडलिंग कोर्स हेल्प? IB बेटा, IB।
IB, FDD, FP&A, फाइनेंस, आपको पूरा फाइनेंशियल पढ़ते आ जाएगा। ठीक है। इफ अ कंपनी सफर्ड अ लॉसेस, ये बता दिया मैंने लॉसेस वाला, यू कैन यूज अ मल्टीपल मेथड इफ द कंपनी सफरिंग अ लॉसेस। ओके, विच स्टेटमेंट यू शुड यूज, अच्छा फर्स्ट वाले का मैंने पूछा था सिंगल स्टेटमेंट विच यू शुड यूज, उसका आंसर था कैश फ्लो। कैश फ्लो स्टेटमेंट यू शुड यूज, पीएनएल नहीं भैया। पीएनएल से मिलता है क्या पूरा डिटेल एनालिसिस? नहीं मिलता, कैश फ्लो से मिलता है। इफ द क्वेश्चन हैव बीन टू स्टेटमेंट, टू स्टेटमेंट्स कौन से यूज करेंगे? तो आंसर वुड हैव बीन, द आंसर वुड हैव बीन अ बैलेंस शीट, है ना, पीएनएल, बिकॉज बैलेंस शीट और पीएनएल से यू कैन मेक अ कैश फ्लो। ठीक है, so that is there. Can we use both the language Hindi and English to give the answer for interview? The answer is straightforward no, preferably English. ठीक है। If a company is earning a good profit, how can it become bankrupt? कोमल बताया मैंने, right? Interest cost है, अरे EBITDA है, अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट टैक्स डेप्रिसिएशन एंड अमोर्टाइजेशन, है ना, लोन लिया हुआ है तो कैसे आएगा? ओके नेक्स्ट, यूट्यूब लाइव पे अगर किसी को कोई डाउट्स है तो पूछ लो। राइट, यूट्यूब लाइव पे कोई डाउट है तो, if you've missed any of the live session for GIR financial modeling, can I get a recorded and backup? The answer is yes, all the recording and backup will be shared with you, nothing to worry, सब चीज का रिकॉर्डिंग और बैकअप आपके साथ शेयर करेंगे। yes, financial modeling is going to be helping for wealth management also. Positive EBITDA chances of bankruptcy, the answer is yes, it can be there ना, बताया तो सही अभी। इंटरेस्ट कॉस्ट, फिक्स असेट्स, रीपेमेंट, अनयूजुअल आइटम, 4-5 चीजें। ठीक है, any other question which you want me to discuss? Any other question which you want me to discuss which you have asked in PI? किसी को कोई क्वेश्चन पूछना है? इन बैंकरप्सी वी हैव 1 करोड़ एज लिमिट। अरे नहीं, वो सब में मत जाओ, इतना टेक्निकल में मत जाओ, बट हाँ बैंकर मतलब नहीं है, कंपनी का फंड नहीं है। इफ यू कुड प्लीज स्पेसिफाई द कीवर्ड टू सर्च द बुकलेट। अच्छा मैं कीवर्ड बुकलेट बता देता हूँ भाई, कहाँ मिलेगा, मैं वेबसाइट पे भी वो अवेलेबल, आईबी वाला। आईबी वाला टेलीग्राम पे डला हुआ है, वो लिंक्डइन पे डला हुआ है, सब जगह घूम रहा है, मेरा ही बुकलेट घूम रहा है। हम्म, रुक जाओ एक सेकंड को, मैं बता देता हूँ, लेकिन अगर आप सर्च करके बता दो कहाँ पे क्या हाँ नाम। मैं बता देता हूँ आईबी। हाँ टेलीग्राम पे आप सर्च कर लो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग, सर्च कर लो इन्वेस्टमेंट बैंकिंग क्वेश्चनेयर, हाँ वही नाम है। वो आप सर्च कर लो, आपको मिल जाएगा। ठीक है, हाउ टू अप्लाई फॉर आईबी, राइट, एप्लीकेशन के लिए है ना, आपको लिंक्डइन यूज करना है, व्हिच इज गोना बी देयर। बाकी कैसे डिटेल में अप्लाई करना है हर एक कंपनीज में, वो जीआर में कवर करते हैं। फॉर पॉजिटिव EBITDA बट बैंकरप्सी कैन हैव नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बी आंसर टू, फॉर पॉजिटिव EBITDA बट बैंकरप्सी कैन नेगेटिव वर्किंग कैपिटल बी आंसर टू, हाँ वो भी हो सकता है। What will be the forecast period for estimated? Forecast period, it's purely depending on type of company, right? If the company is into the mature phase, mostly will go for 3 years. If the company is into the growth phase, you will go for 4 to 5 years, which is going to be there. Okay. Next, someone is asking the cost of equity or cost of debt, which is costlier. The cost of equity is costlier, right? Which is going to be there. Now, next question which I asked is, when should a company, right? When should a company issue a equity rather than a debt? Right, it should issue only or when the company feels that the price is inflated, stock price inflated है तब। दूसरा, right, कि may not be able to produce a immediate return, तुरंत रिटर्न नहीं मिल रहा है उनको तब। और तीसरा है कि कंपनी wants to adjust its capital structure, तो तीसरा ये हो गया। एंड फोर्थ, इन द कंपनी ओनर्स वांट टू सेल ऑफ। 4 तरीके हैं जब आप इक्विटी को इशू करेंगे इंस्टेड ऑफ डेट। 4 reasons when you will use equity instead of a debt. ठीक है, आई थिंक दैट इज समथिंग विच वी हैव आल्सो कवर्ड। ठीक है, आई थिंक यश वो कवर हो गया, कॉस्ट ऑफ इक्विटी और कॉस्ट ऑफ डेट, कॉस्ट ऑफ इक्विटी इज कॉस्टलियर। ठीक है, डन। ओके, आई थिंक गॉट इट। 10 संभव में अगर कोई आईबी फॉर्म आएगी, लास्ट टाइम आईबी फॉर्म आई थी 1-2 तो अप्लाई किए थे, राइट, विच इज गोना बी देयर। अच्छा, एक और प्री कंसीव्ड नोशन है लोगों के दिमाग में कि संभव में अप्लाई कर दिया तो जॉब लग जाएगी। ऐसा कहीं नहीं लिखा है भाई, कहीं नहीं लिखा है ना। कुछ लोगों को लग रहा है कि जॉब अप्लाई कर दिया सीएमओ में तो सीएमओ सब कर देगा, आपको भी मेहनत करनी पड़ेगी। इट्स प्योरली डिपेंडिंग ऑन योर सीवी, इट्स प्योरली डिपेंडिंग ऑन योर एप्लीकेशन, इट्स प्योरली डिपेंडिंग ऑन योर प्रिपरेशन। हम जब स्क्रीनिंग कॉल करते हैं, बच्चे को पूछते हैं इंडेक्स 115 क्या है बताओ, उसको ये नहीं पता होता है 115 क्या है, फिर उसको पूछते 5 स्टेप मॉडल क्या है, वो नहीं बता पा रहा है। ठीक है, उसको बोलते प्लीज इंट्रोड्यूस योर सेल्फ। अगर आप इंट्रोड्यूस ही नहीं कर पाओगे तो कैसे कोई कंपनी सिलेक्ट करेगा भाई। डेफिनेटली वी आर एक्सपेक्टिंग यू टू प्रिपेयर मोर, दैट इज गोना बी देयर। ठीक है, तो दैट इज समथिंग विच वी आर ऑल्सो हेल्पिंग यू आउट विद मॉक इंटरव्यूज प्रिपरेशन एंड एवरीथिंग इन आवर ट्रेनिंग वर्कशॉप विच इज गोना बी देयर। ठीक है,
So that's it. I think that's it all about the today's session, right? We are conducting a lot of mock interviews and other things out. Upcoming हमारे कल के लिए बहुत बढ़िया बढ़िया सेशंस प्लान है. कल का सेशन इज समवेयर अराउंड कल हमारा 25th है, तो पाइथन फॉर फाइनेंस बहुत ही बढ़िया सेशन कल के लिए प्लान किया गया है कि भाई पाइथन कैसे आपको हेल्प करेगा, विच इज आई थिंक 25th, राइट. तो 25th हमारा सेशन है पाइथन फॉर फाइनेंस, राइट. तो पाइथन फॉर फाइनेंस के लिए आप जाइए, रजिस्टर कर लीजिए, बहुत बढ़िया इवेंट है. उसके अलावा मॉक इंटरव्यू प्रैक्टिस एक और 27th को लेंगे, राइट. तो बहुत सारे सेशंस ले रहे हैं. यूट्यूब के साथ कनेक्टेड रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए. कोई क्वेरीज है, कोई डाउट्स है तो जरूर बताइए. ठीक है. कोई डिस्काउंट कूपन है क्या बेटा? नहीं, कोई डिस्काउंट कूपन नहीं है. एवरीथिंग इज एट अ डिस्काउंटेड प्राइस ओनली. ठीक है. तो ग्रेट. आई होप गाइस आपको सबको मजा आया होगा यार. डू शेयर द फीडबैक अबाउट द सेशन, राइट. डू शेयर द फीडबैक अबाउट द सेशन. कैसा लगा यार सेशन, बता दीजिए, राइट. आई होप इट वाज अ ग्रेट लर्निंग, स्पेशली निखिल. आई होप आपको थोड़ा सा मेहनत करना पड़ेगा भाई निखिल. अब यस सर. टेक्निकल पे काम यस करो सर. भाई. तुम्हारा थोड़ा अभी कॉन्फिडेंस टेक्निकल्स पे काम करते हैं. हाँ सर. तुम्हारा कॉन्फिडेंस अच्छा है, बट टेक्निकल पे मजा नहीं आया मेरे को. टेक्निकल पे काम करो, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग का बुकलेट पढ़ो, राइट. और इस पे थोड़ा सा काम श्योर कीजिए. सर. आप टेक्निकल पे आप थोड़ा सा वीक जा रहे हो, श्योर. है ना. थोड़ा सा आप रिवाइज करो. आई थिंक यू विल बी एबल टू डू इट. तो ग्रेट गाइस, इसी प्रकार से हम लोग श्योर सर. कुछ नया नया लर्निंग करेंगे, राइट. एंड रियली हैप्पी टू सी ऑल ऑफ यू गाइस ज्वाइनिंग इन फॉर द सेशन. थैंक यू गाइस, बाय बाय.